Okay, students. So now, as you all know, that we have planned this pre-board practice examination for you all. Now, I really want that you give these exams very sincerely, and that is the reason why I also want you to get ready and prepare as if you are going for your actual boards. So, start with the presentation. Now, last few days before exams. Now, see, normally before exams, you have to get ready for the main exam. So, we generally would like you to follow a very disciplined lifestyle just for few days before the exams. वैसे आपका लाइफस्टाइल डेफिनेटली बहुत डिसिप्लिन होगा ही, बट कुछ दिनों के लिए मैं चाहता हूं आप अपने आप को ज्यादा संभालें और ज्यादा ध्यान रखें. लाइक प्रॉपर स्लीप चाहिए हमें, प्रॉपर डाइट चाहिए एंड थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी चाहिए. So this is very important. You should have adequate sleep, adequate nutrition, and adequate exercise. Now, proper sleep will be very important for you because generally I've seen that before exams बच्चों को बहुत stress होता है, late night तक जागते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं, पूरा रूटीन डिस्टर्ब कर देते हैं. तो इससे तुम्हारा concept absorption will go down. So you really need to have proper sleep, proper schedule for it. Food what you intake needs to be healthy. Otherwise, you'll feel very sloggy, very sleepish. You'll not get that energy. And exercise will help you to focus more, concentrate more, stay fresh, energetic, positive for studies. Now, what you need to do now, very few days are left. तो हम अब कुछ ही दिन जो रह गए उसके लिए हम क्या करेंगे. तो सी, it is said that if you fail to plan, you plan to fail. यानी अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो गए तो आप प्लानिंग कर रहे हो फेल होने के लिए. आई एम श्योर बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड मेहरबान है हम पे, ऐसा होने वाला ही नहीं है कि कोई फेल होगा. बट वी रियली वांट कि तुम में अब ये सिलेबस प्लानिंग का वो स्किल डेवलप हो. तो आई वुड लाइक यू आफ्टर दिस मीटिंग के एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो कि ये दिन हम एग्जाम जाएंगे, एग्जाम से पहले हम ये चीजें पढ़ेंगे, और उसके बाद जो ब्रेक होगा, जो लास्ट 1 वीक है बिफोर योर बोर्ड एग्जाम, उसमें हम क्या क्या करेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, रिवीजन भी हो गया है. तो अगर रिवीजन आपका हो गया है या वंस इट इज डन, then you start solving full course paper. It will give you lots of confidence, lots of confidence. A few days back, I was sharing this with my students at OP Road that I was pretty average student. 10th में 69% मेरे आए थे. But 11, 12 commerce, so like I really enjoyed studying commerce and accounts, stats, eco, ये सब subjects बहुत मुझे मजा आते थे पढ़ने में. So in 12th standard, what I did was I used to regularly practice full course paper just a month before the exams, and that really helped me a lot. मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा कभी रैंक आएगा, and I got Vadodara district 5th rank in board exams. ऐसा भी सोचा नहीं था कि मुझे मिलेगा, उसके लिए कभी प्लान भी नहीं किया था. बट हाँ, पेपर लिखना, अच्छे मार्क्स लाने हैं, सुपर स्कोर करना, वो हमेशा था. एंड बिकॉज ऑफ राइटिंग ऑफ पेपर्स, आई थिंक इट हेल्प मी टू स्कोर अ एज ओवर अदर स्टूडेंट्स. क्योंकि वो 3 घंटे लिखना, वो प्लान करना, वो गलतियां होना, फिर वो गलतियों को सुधारना, उससे आप डेवलप होते जाते हो. तो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे मेंटली यू आर वेरी स्ट्रांग. सो प्लीज, अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो आप पेपर्स लिखना चालू कर दें. गैजेट्स. नाउ गैजेट्स
I know it's very difficult for you guys to be away from gadgets. You also need to constantly check who is liking you, who is commenting you, who is sharing your photo and reels. But I would say that you do that. Okay, I'm not going to stop you. हम नहीं चाहते कि आप बर्बाद हो जाओ. Okay, वो नहीं. और मोबाइल ले लिया तो कितने सही में बर्बाद हो जाएंगे. तो I would like you to have a schedule for that also. कि not more than 1 hour a day. So please, students थोड़ा ownership लो अपने करियर का. एंड कब तक कोई टीचर आके हमें कहे, कोई पेरेंट्स आके हमें कहे और हम फिर उसको छोड़ के रख दे साइड में. तो नाउ टाइम हैज कम टू अप योर लेवल and you really need to have your self control and self discipline. So I would sincerely request you that अगर होता है तो बिल्कुल मत यूज करो, बट नहीं रहा जाता है और तुम्हें भी चाहिए वो एंटरटेनमेंट पार्ट, तो not more than 1 hour a day, please. So I would expect all of you to follow this so that what all you are studying, that stays in your head. Many students I have seen हेडफोन्स लगा के पढ़ाई करते, पता नहीं क्या इतना टैलेंट है उनमें, इतना टैलेंट है कि मजा आ जाता है. मल्टीटास्किंग, इधर सामने टीवी चल रहा है, इधर हेडफोन में म्यूजिक चल रहा है, बाजू में बैठ के हमारे पेरेंट्स किसी से फोन पे बात कर रहे हैं या गप्पे लगा रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं. वाह, क्या कॉम्बिनेशन है. तो see, multitasking is good when you go into your professional life, but right now your study requires full concentration and focus because these concepts you're going to carry forward in your professional life. So I would really request you to avoid music because what tunes are not, they are very catchy tunes. They keep on playing in your head. Kacha badam, pakka badam, it keeps on happening. तो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू कि ऐसा ही आपको अभी ये सब चीजें खास ध्यान रखना है. और लास्ट जो मेरा बुलेट पॉइंट है, दैट्स रियली अमेजिंग, कि प्लीज बी एन ओबीडियंट चाइल्ड एंड लिसन टू योर पेरेंट्स. दे आर योर बेस्ट गाइड एट होम. See, exam time is there. Your parents are going to really take very good care of you. So you also need to listen to them. So I would really like कि कुछ दिन जो बच गए हैं उसमें थोड़े ओबीडियंट हो जाओ, लिसन टू योर पेरेंट्स, और वो जो आपको गाइड करते घर पे, आई एम श्योर, बिलीव मी गाइज, व्हाट दे विल टेल यू will be with you forever and it will really help you a lot in your life. Now, ये था before few days before exams, but just before the exam, यानी मंडे से एग्जाम चालू हो रहे हैं तो हम संडे को सर क्या करेंगे, और मंडे को भी हम सुबह उठ के क्या करेंगे, बिकॉज 3 बजे का तो हमारा पेपर है. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अ डे बिफोर एग्जाम और जस्ट बिफोर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव प्रॉपर स्लीप. बच्चों को ऐसा होता है कि हम आज तो जाग लेते, आज तो 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेते, बट ऐसा करने से your body will give up, your mind will give up, and after the exam you will have lots of tiredness. And remember students, for your batch you have accounts and next day immediately statistics, where you need to learn lots of formulas, calculation, you need that concentration. So please have proper sleep. Before going for exam, 3 o'clock is the timing, so by 12:30 you should be done with your lunch. Possible, if possible, have a small power nap. Now power nap है, okay, 1-1.5 घंटा सो नहीं जाना है कि चलो आग लग गई, नहीं तो इधर जो है वो खाली हो जाएगा. Power nap is 10 to 15 minutes, maximum 20 minutes. So you have that power nap, go through summary what all you have made around 1 to 2 p.m. So 2 o'clock before you leave, ऐसा लग रहा है कि लास्ट मिनट पढ़ना पड़ेगा तो 1 से 2 के बीच में पढ़ लो, बट 2 बजे के बाद गेट रेडी फॉर योर एग्जाम. बिफोर लीविंग योर होम, डू अ प्रेयर, टेक योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स ब्लेसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो डोंट मिस दिस प्लीज.
You need to do a prayer and take your parents and elders blessings. Check essential like hall ticket, na bhulna, exam writing pad, compass, calculators, etc., etc., etc. We'll send you a separate checklist for this on your mobile phone. Now, आपका जो टाइम है घर से from your home to the exam center, you calculate the time. You can check on the Google map, and then you leave early and drive slow. Please, please leave early and drive slow. अगर आपको पता है कि 15 minutes is the commuting time, then you leave at around 2:20, leave at around 2:15, keep some margin of safety, but please keep all these things in mind. Now, एग्जाम सेंटर पे पाँव रख दिया, धड़कनें बढ़ गई, स्ट्रेस बढ़ गया कि आ गए इतने सारे स्टूडेंट्स, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बुक खोल के बैठे होते हैं, यानी पता नहीं अभी वो लास्ट में क्या पढ़ लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे एग्जाम में। बट ऐसे बच्चे ना बहुत टेंशन देते हैं अपने को लगता है साला अपने तो चिल्ड आउट होके आए और ये देखो इतना पढ़ रहे हैं, ओ माय गॉड, कहीं हमारे में तो कोई कमी रह तो नहीं गई है ना, हम क्यों ऐसा नहीं कर रहे। इनफैक्ट कुछ दिन पहले तो मैंने ऐसा सीन देखा कि टू व्हीलर पे एक पेरेंट था और उसके पीछे जो बच्चा था ऐसे घूम के उल्टा बैठा और हाथ में बुक। तो प्लीज ये सब निकाल देना एग्जाम सेंटर पे। यू हैव अ हैप्पी फेस एंड आई रियली मीन इट, देयर शुड बी अ ग्लो ऑफ हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस। ऐसा नहीं भी हो ना तो भी ऐसा एक्ट करो ताकि और दो चार तुम्हें देख के फ्रस्ट्रेट हो जाए। ओके तो खास आई वॉन्ट यू टू लुक हैप्पी एंड लुक कॉन्फिडेंट। तो थोड़ा वो करोगे, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी यू विल ऑटोमेटिकली बी कॉन्फिडेंट एज वेल। बिफोर एग्जाम अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे फ्रेंड्स आके तुमसे पूछने वाले कि केवी तैयारी કેટલું કર્યું, અરે તે આ કર્યું, ઓ માય ગોડ રહી ગયું, અરે આ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो टाइम। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि किसी के साथ कुछ भी एग्जाम प्रेप का डिस्कस नहीं करना है, मिलो हाय हेलो सीधा जाओ क्लास में। ओके नाउ once you enter the class, because you are going to a new place, new environment, you observe the surrounding, आजू बाजू देख लो, let that thing fit in your mind, that periphery be there in your mind and you be comfortable कि हाँ I know what's around me, what are the benches, where's the board, where's the door, what all things are there around me. So observe this and you settle down before you get the paper. Okay, or you just have the paper in your hand, but before you see that, again I would request you to have a short prayer so that your mind is back, you are there, your focus is there, and start giving it a glance. So dekhna fir chalu karo. You will get 15 minutes to read your paper, 15 minutes. Okay, now you read the questions carefully and make a plan in your mind कि कैसे कैसे क्या क्या चीज मैंने देखा है उसको मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। और जैसे ही आंसर शीट मिलता है सबसे पहले पूरा डिटेल्स प्रॉपरली फिल करना है। बोर्ड एग्जाम में यू विल बी गिवन अ बारकोड स्टिकर, सो यू हैव टू अप्लाई दैट। तो वो डिटेल्स एकदम बराबर फिल करने के बाद यू स्टार्ट राइटिंग। डोंट लुक हियर एंड देयर, डोंट वेट, just start writing. Now, one very important thing I would tell you, because I said start writing, so you have to write the section and the question numbers properly for examiner to locate the same. मैंने देखा है जब मेरे स्टूडेंट्स सॉरी होमवर्क करते हैं तो क्वेश्चन नंबर्स ठीक से नहीं लिखते, तो चेकर्स को डिफिकल्टी हो जाती है। अपने नोटबुक में कोई आंसर ढूंढना है तो उनको नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने प्रॉपर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे। तो यू हैव टू थिंक कि एक एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा उसको सब चीजें प्रॉपरली मिलनी चाहिए, तो आपको प्रॉपरली लिखना है सेक्शन ए,
question number 1, question number 2, question number 3, this should be very proper. Please ये सब चीजों का खास ध्यान रखिएगा. I will also share this presentation with you, okay? Or you can even note down few things if you want to. Now, write your paper neatly without scratches, scribbling and overwriting. Now, this is really important, student, कि आप जो पेपर लिखते हो ना, see, बोर्ड में the paper checkers don't know you. कि अरे ये तो अभिषेक है, बहुत ही होनहार बच्चा है, अरे ये तो अच्छा ही लिखा होगा उसने, या ये तो ये स्टूडेंट है, इसका पेपर ही अच्छा नहीं होगा. सो दे डोंट नो यू, उनको नहीं पता ये किस स्टूडेंट का पेपर है. अब वो कैसे जज करेंगे कि ये स्टूडेंट पढ़ाई में कैसा है, पर्सनालिटी में कैसा है? सो इट इज जज बाय द पेपर you have written. Please, it is said that look before you leap, think before you speak. So before you write anything, be sure while writing, and that is why I told you, you need to practice more exam papers. It will give you lots of confidence. तो तुम्हारा पेपर तुम्हारा पर्सनालिटी है पेपर चेकर्स के लिए, तो मुझे वो स्क्रैच फ्री चाहिए और उसमें कोई भी स्क्रिबलिंग ओवर राइटिंग होना नहीं चाहिए. प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट. इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, टाइडी पेपर. हाँ, हैंड राइटिंग शायद आपके अच्छे इतने नहीं है तो चलेगा, बट टाइडी होना चाहिए. अब हैंड राइटिंग भी सही नहीं, स्क्रैचेस भी है, ओवर राइटिंग भी है, तो इट विल अफेक्ट योर मार्क्स. ओके, एंड द एग्जामिनर विल फॉर्म एन ओपिनियन कि ये सही नहीं है स्टूडेंट, तो सही लिखा है उसके भी प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे नहीं. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, घड़ी जो है तुम्हारी, स्मार्ट वॉचेस आर नॉट अलाउड. सो टेक अ मैकेनिकल मैनुअल वॉच. ओके, वो बैटरी वाला नॉर्मल जो वॉच आता है वैसा वॉच लेके जाओ, एनालॉग, और वो तुम्हारे राइटिंग डेस्क में या डेस्क के नीचे जो जगह है वहां पे रख दो, सो दैट यू हैव अ ट्रैक ऑफ टाइम. बिकॉज कितनी बार क्या होता है, वो फ्लो में कितनी बार समय का पता ही नहीं चलता. एक ऐसे भी बच्चे हैं जो फ्लो में समय का पता नहीं चलता, और कुछ ऐसे भी बच्चे जो इधर उधर देखते सोचने में समय का पता नहीं चलता. तो अगर तुम इन दोनों में से कोई भी हो, तो तुम अभी भी जब पेपर लिखते हो तो तुम्हें वॉच तुम्हारे सामने, नजर के सामने होनी चाहिए, हाथ पे नहीं, नजर के सामने, सो दैट यू कॉन्स्टेंटली नो कि हाउ द टाइम इज गोइंग बाय, हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग. ये सब हम आपको चेकलिस्ट भेजेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, FAQ, दैट इज, सर ઓર્ડર ચેન્જ કરી શકાય? સર અમે છેલ્લેથી પેપર લખીએ તો ચાલે? ના, सी, चल सकता है. ओके, लेट मी बी ऑनेस्ट, उसमें कोई तुम गलत नहीं कर रहे हो, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द टीचर हु इज गोइंग टू चेक योर पेपर. बोर्ड में सारे टीचर्स एक साथ मिलके जब पेपर चेकिंग करते हैं तो उनके माइंड में एक फ्लो ऑफ पेपर बन जाता है कि ABCDEF. अब मान लो तुमने चालू किया E से, फिर तुम गए B में, फिर तुम गए F में, तो टीचर को दिक्कत होती है पेपर चेकिंग में. टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ऐसे पेपर्स देख के जहां पे कोई ऑर्डर नहीं है, कोई फ्लो नहीं है. तो ये मेरा रिकमेंडेशन है स्ट्रांगली कि ऑर्डर ऑफ द सेक्शन चेंज मत करो, A से F ही जाओ. एंड अकाउंट्स में मैं तुम्हें बताऊंगा कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू चेंज द ऑर्डर व्हाइल वी गो टू अकाउंट स्लाइड. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स की डोंट चेंज द ऑर्डर ऑफ द सेक्शन. तुम करोगे तो गलत नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि यू आर unnecessarily creating difficulties for you. Okay, now as I mentioned, don't waste time looking here and there. तो इधर उधर देखना, फाफे मारना, कुछ याद नहीं आ रहा है तो देखते रहते, मत देखो किसी को, तुम लिखते ही जाओ. एक बार चालू किया तो बस पूरा फोकस उधर ही चाहिए. Now
never be in a hurry to finish the paper and leave the center. Never be in a hurry, because अगर आपका पेपर कंप्लीट जल्दी हो गया है तो प्लीज रिव्यू, जस्ट गो थ्रू इट वंस, चेक द फॉर्मेट्स, चेक द कैलकुलेशंस, दैट विल रियली गिव यू अ एज. अगर कुछ मिस आउट है तो तुम्हें तुरंत तब पता चल जाएगा. एक बार आप बाहर निकल गए, यू कैंट एंटर बैक. सो कीप ऑल दीज थिंग्स एट माइंड for exam center and during exams. Now, accounts ka paper, you can see what I've written over here. It's like facing the first ball of the match. Accounts board exam का सबसे पहला पेपर है, and because ये पहला पेपर है, there will be lots of nerves. You will not be so much comfortable because you are going to a new place. प्लस घर पे माहौल, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, रिलेटिव्स के फोन, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन योर हेड. क्योंकि कोई जब बेस्ट ऑफ लक कहता है तब हमें कितनी बार ऐसा भी ख्याल आता है कि अब तो शायद लक ही बचा सकेगा. तो टेंशन आ जाता है, यू नो, बिकॉज वो परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है. तो जैसे ही मान लो कि सचिन तेंदुलकर गया, पहला वो आया ओपनिंग करने, एंड स्टेडियम में सब बोल चिल्ला रहे सेंचुरी 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 सेंचुरी, तो उसके ऊपर भी ये प्रेशर आएगा और उसको भी वो नर्व्स आएंगे, क्योंकि वो ही इज गोइंग टू फेस द फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच. तो अकाउंट्स इज द फर्स्ट पेपर, तो यू हैव टू कीप योर हेड एंड योर हार्ट इन कंट्रोल. Make proper formats with scale, pencils, and mention proper headings for getting full marks. मैंने देखा है स्टूडेंट्स do the sum perfectly right, हेडिंग्स के ठिकाने ही नहीं है. कितने लोग तो हाथ से लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे आर्किटेक्चर का क्लास और हम चेक कर रहे हैं कि कितना स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हो. मत करना ये सब का प्रैक्टिस करो, अभी भी टाइम है हमारे पास, एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस प्री बोर्ड. तो इसका प्रैक्टिस करो कि प्रॉपर फॉर्मेट्स, प्रॉपर हेडिंग्स, डेबिट क्रेडिट. इफ यू आस्क मी, if you have done a final account sum which is fully correct, everything is tallying, amazing presentation, but trading account, PNL account, PNL app, partners cap, partners capital, partners current, वहां पे तुमने हेडिंग में साइड में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, तो हो सकता है वो टीचर तुम्हें फुल मार्क्स नहीं दे. बिकॉज फुल मार्क्स मीन्स 100%. 100% यानी 100% ही होना चाहिए. Will you buy a new mobile phone with a scratch, a car with a minor scratch? No, you will fight for it. કે આટલા રૂપિયા આપ્યા છે, આટલો પણ સ્ક્રેચ ના જોઈએ મને. તો વૈસે ही 100% means 100% परफेक्ट ही चाहिए. तो खास ये सब तुम्हें अपने माइंड में रखना है. फाइनल अकाउंट का सम टैली नहीं हुआ तो इन एक्सेप्शनल सिचुएशन यू कैन यूज दिस तुक्का कि टोटल ऑफ लायबिलिटी असेट साइड यू राइट द सेम ऑन द लायबिलिटी साइड. बट ये लिखने से पहले यू ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस कि तुम्हारा असेट लायबिलिटी क्यों मैच नहीं हुआ. जो भी डिफरेंस आया है उसको सर्च करो ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टमेंट में, कहीं वो अमाउंट है. अगर मिल गया तो तुम्हारा टैली हो जाएगा. अगर वो अमाउंट नहीं मिलता तो उस अमाउंट को हाफ करो, डिवाइडेड बाय 2, एंड देन यू चेक कि इज दैट अमाउंट देयर समवेयर. क्योंकि कितनी बार क्या होता है, रॉन्ग साइड लिख दिया होता है तो डिफरेंस डबल हो जाता है. तो ये ट्राई करो. टाइम है तो रिकैलकुलेट करो, और टाइम नहीं है तो आगे बढ़ो. असेट साइड का टोटल, लायबिलिटी साइड लिख दो. इट्स इज रॉन्ग थिंग. I generally never recommend it, but it is a war-like situation. You have to take a decision and just move ahead. So you can do that, and that's why मैंने लिखा है only in exceptional situations. So please don't make it a habit, don't make it a practice. ये एग्जाम टाइम का है कि अगर मेरे जान पे बनाई तो मैं क्या करूंगा. Now, final accounts, admission, retirement. Please complete the sum. Many students just do posting and adjustment without balancing.
नाउ पता नहीं मुझे कि क्या साइकोलॉजी है बच्चों का, कि एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट दे दिया, ट्रायल बैलेंस लिख लिया, फिर टोटल क्यों नहीं करते? तो अगर आप टोटल नहीं करोगे इट मींस योर सम इज इनकम्प्लीट। और बोर्ड में जो पेपर चेक होते हैं वो पेपर चेक होने के बाद तुम्हें देखने नहीं मिलते कि तुमने क्या गलती किया या तुम्हें क्यों इतने कम मार्क्स आए। तो तुम लोग अगर कोई भी सम करते हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, फाइनल अकाउंट्स, ओके, तो तुम्हें वो सम कंप्लीट करना है। डोंट लीव दोस फॉर्मेट्स ओपन विदाउट बैलेंसिंग, बिकॉज तुमने सिर्फ वो बैलेंसिंग नहीं किया, तुम्हारा सब कुछ करेक्ट था, 11 मार्क्स से तुम्हें 3 मार्क मिले, 4 मार्क मिले। कोई टीचर फ्रस्ट्रेट होकर तुम्हें 0 भी दे सकता है एंड तुम वो टीचर के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकोगे। क्लास में आके तुम मेरे साथ आर्ग्यू कर सकते हो कि सर इतना लिखा, मार्क्स क्यों नहीं दिया, बट बोर्ड में वो विंडो क्लोज है तुम्हारे लिए। Reassessment doesn't mean you will be able to see the paper. You can bargain for marks. तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू ये मत भूलना। एडमिशन रिटायरमेंट का एक और पॉइंट है जो मैं चाहता हूं हर एक बच्चा ध्यान से सुने। जो भी एडमिशन और रिटायरमेंट में जहां पे भी यू आर मेकिंग कैश और बैंक अकाउंट, डोंट फॉरगेट टू बैलेंस एंड पुट दैट बैलेंस इन बैलेंस शीट, otherwise your sum will not tally, because generally students make the format of cash and bank balance after the balance sheet. So you close your cash and bank account first, balance it, put that balance into balance sheet, and then do the total. So please don't forget this. Journal entry. Now there are some short sums where you are asked to write rectifying entry. In that case, I have seen students just writing the entry, not making the format. So you have to make a format of journal entry. For full-fledged sums, short sums, wherever it is journal entry, make proper format with scale. After the entry is written, write narration, do the totals. Please take care of this, students. I really want you to score the best. And once the paper is over, in case you have left something, left some questions which you did not want to attempt at that point of time, or you were not knowing, okay, it can happen in theory subject, it can happen in account stats, English, any subject, then you write whatever you know. Write whatever you know. हाँ प्लीज मूवी की कहानियां मत लिखना, मैं वॉर्न करता हूं तुम्हें, वॉर्न करता हूं, ये सब वाहियात चीजें मत लिख के आना। बट जितना भी याद आता है related to that question या nearby that question given in the textbook or what all you have learned, लिख के आना। हाँ बट आई एम रियली टेलिंग यू गाइस, अगर ऐसा कुछ तुमने गलत लिख दिया है, ओके, फॉर्म में ना फॉर्म में, कि सर ने तो कहा था खाली मत छोड़ना, तो हमें तो पुष्पा की कहानी याद आ गई तो वो लिख डालो, मत प्लीज, ऐसा मत करना, नहीं तो फायर कहीं और लग जाएगा, प्लीज, ओके। एंड लास्टली इन अकाउंट्स, लास्ट जो टाइम रह जाता है तुम्हारे पास, उसमें कैलकुलेशंस और फॉर्मेट प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो, पहले फॉर्मेट और उसके बाद कैलकुलेशंस। स्टैटिस्टिक्स। नाउ अकाउंट्स जैसे ही खत्म हुआ, तुम्हारे पास 24 घंटे भी नहीं है, यू डोंट हैव 24 hours with you to prepare for statistics, because you leave the center at 6:15, reach home by 7 o'clock. You don't have much time for statistics. Next day morning only you have, and that evening or late night you have to study. So statistics, how to deal with this subject. So first bullet point what you can see is statistics is basically calculation, calculations, and calculations. Now, statistics is a subject which is full of calculations. तो आपको ये सारे कैलकुलेशंस बहुत अच्छी तरह याद रखने हैं। I'll just share the screen again. सारे कैलकुलेशंस आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं।
You must remember all the formulas of statistics. Now, see, statistics is actually a very easy subject. Don't tell me कि सर मैथ्स कमजोर है तो स्टैट्स नहीं पाता, ये गलत चीज है. अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो आपके पास कैलकुलेटर है. तो मैथ्स कमजोर नहीं है, कैलकुलेटर है हमारा साथी जो हमें मदद करेगा अगर मैथ्स कमजोर है तो. बट प्रॉब्लम इज स्टूडेंट्स डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला and they forget कि for this question what formula to apply. Formula तो याद ज નથી આવતો. Many times they know the columns के ये लिखा टोटल किया, इसका स्क्वायर दिस इनटू दिस. और हैला वो फॉर्मूला तो याद ही नहीं रहा कि ये इसमें अंडर रूट करने का था या नहीं करने का था. तो stats के लिए you must remember all the formulas. That's most important. Once your paper is over, finish the left out question with whatever you know, recheck the calculation and formats after every sum. Recheck the calculation and the formats after every sum. Stats ऐसा पेपर है जहां पे you will have कंफर्टेबल टाइमिंग. ओके, तो तुमने कुछ भी लिखा है रिकैलकुलेट करो, टोटल किया है चेक एंड करेक्ट यूज करो. नाउ स्टैट्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे लोग शॉर्ट में आंसर लिख देते. अब 4 मार्क का सम है, आप उसमें सिर्फ 4 ऐसे स्टेप्स में आंसर लेके आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. मैं रिक्वेस्ट करता हूं और अदर तुम्हें ऑर्डर करता हूं कि टेक्स्ट बुक खोलो, इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन का प्रेजेंटेशन देखो और वैसा ही तुम्हारा प्रेजेंटेशन चाहिए टू गेट 100 on 100 in statistics. So please refer the illustration for how you are going to write in your answer paper for statistic sums. I sincerely request you. Probability का sum है तो सिर्फ n लिख दिया, m लिख दिया, m अपॉन n कर दिया, आंसर लिख दिया 1/36. नो, 4 में से 1 मार्क मिलेगा, ओनली 1. कितनी बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स आके मुझे बोलते हैं कि सर બધા आंसर करेक्ट है पर खबर नहीं 100 માંથી 80 કેમ आया सर. ये वजह है. तो ये प्रॉपरली आप लोग तैयारी करके जाना कि स्टैट्स में प्रेजेंटेशन कैसे करना है फॉर एवरी सम. और एक स्मॉल टिप है तुम सबके लिए, क्योंकि स्टैट्स में थियोरी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लर्न करने के लिए. तो उसमें हम क्या करें, तो एक तो यूविल का मटेरियल हमने तुमको दिया ही है, उसके साथ साथ एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर देयर इज अ समरी थियोरी एंड फॉर्मूला. तो आई वुड लाइक कि जितना भी वो समरी में दिया है और जो फॉर्मूलाज है वो आप एकदम 100% पक्का कर लो. दैट समरी थियरी विल हेल्प यू फॉर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. तो आई थिंक ये आपको खास अकाउंट्स और स्टैट्स में ध्यान रखना है. माय नेक्स्ट स्लाइड आई विल शेयर विथ यू एंड it's very interesting how you will be allocating time to the subject. Now accounts section A is 20 question. I'll give you, you should target to finish it in 20 minutes. Section B 10 question, 10 minutes. Section C 4 question, 15 minutes. D 3 question, 15 minutes. यानी 1 hour में तुम्हारा 52 marks का accounts खत्म. That is why I tell you don't change the order. I really want कि पहले आवर में जब तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश है, फुल ऑफ लाइक पॉजिटिविटी, लॉट्स ऑफ फोकस, थियोरी भी अच्छी तरह आप लिख सकते हो, आराम से ये सब सॉल्व कर सकते हो और बहुत टाइम है तुम्हारे पास बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल क्वेश्चंस. तो इन 1 hour यू कैन फिनिश 52 मार्क्स. और एक बार ये 1 hour में डी तक हो गया तो तुम्हारे पास एडमिशन, रिटायरमेंट, इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए एम्पल टाइम रहेगा. प्लस यू विल हैव फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट्स कंपनी. सो फॉर दैट you will have sufficient time. Another 50 minutes for 3 sums of
either admission, retirement, 2 sums of admission, 1 of retirement, 2 of issue of shares. So 5 में से you have to attempt 3. तो I give you 50 minutes for that. तो तुम्हारा भी ये 50 minutes का target रहना चाहिए. और 2 questions, final accounts, partnership, around I would say 35 to 40 minutes, and final account company, okay, it should be around 20 minutes, 25 minutes में तो आराम से हो जाएगा. मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा टाइम लगेगा for company final accounts. तो I would really request you in accounts that पहला 1 hour में 52 marks का लिख लो, और that's why keep the watch near you so you can track the time. अगर 1 hour से ज्यादा हो रहा है तो फिर तुम्हारे लिए बाकी के क्वेश्चंस में टाइम कम रहेगा, जहां तुम्हें बहुत सारे पेंसिल स्केल से फॉर्मेट्स बनाने हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन करना है, जीपी टू एनपी, एनपी टू एनडीपी, एनडीपी टू कैपिटल बैलेंस टू बैलेंस शीट से टोटल. सो इट विल टेक टाइम. सेम फॉर एडमिशन, सेम फॉर रिटायरमेंट. तो 170 minutes I have given for you as a target time कि 170 minutes में पेपर पति जऊ જોઈએ, पेपर खत्म हो जाना चाहिए with all correct answers. Last 10 minutes for checking and pending headings. Statistics जो है, that's a relatively, you will have comfortable time, although number of questions are more, but the questions are not so lengthy के पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स तो 4 पेज या 3 पेज लग गए. ओके, ऐसे क्वेश्चंस इसमें नहीं आते, बट इसमें कैलकुलेशंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अलोकेट जो मैंने टाइम यहाँ पे किया है, उस टाइम से तुम आराम से सॉल्व भी कर सकोगे अलोंग विथ रीचेकिंग. और 160 मिनट्स में मुझे लग रहा है कि पेपर कंप्लीट हो जाएगा. नाउ 20 minutes you still have a buffer. तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट राइटिंग स्पीड ऑफ स्टूडेंट्स इट कैन वेरी. ऐसा भी हो सकता है 150 मिनट्स में कंप्लीट हो गया या 170 मिनट्स में कंप्लीट हो गया. सो दीज आर टेंटेटिव टाइमिंग्स व्हाट आई हैव अलोकेटेड. यू कीप दिस इन माइंड, और हमारे प्री बोर्ड में ये एक बार करके देखो कि तुम्हें कितना इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, कहाँ पे अटक रहे हो, तो मेन बोर्ड में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी. नाउ सी, बिफोर वी गो टू अदर सब्जेक्ट्स, अकाउंट स्टैट्स रिलेटेड अगर तुम्हारे माइंड में कोई क्वेश्चंस है तो तुम चैट बॉक्स में वो लिख सकते हो. तो मैं सेशन के एंड पे उन सब का रिप्लाई दूंगा. अभिषेक सर, आर यू अराउंड? यस सर. तो नाउ अकाउंट स्टैट्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू व्हाट यू नीड टू डू. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सी अभिषेक सर टू कंटिन्यू विथ हिज subjects and his area and his specialization, that's theory subject for economics and OCM. So Abhishek sir, you can start. Thank you Sagar sir. Good evening everyone. Good evening. गुड इवनिंग सर. Good evening, sir. गुड इवनिंग देख सर. रहा हूँ बहुत सारे वीडियो ऑफ है बेटा. Just a पहले minute, वीडियो ऑन करो. Abhishek, one question I will take just right now, okay? And that is, okay, sir, can we rely on the board exam blueprint? बिल्कुल नहीं. See, board है इसके लिए नहीं. Okay, rely कर सकते हो. I would say 99% you can rely, but हमारा board है तो वो probability chapter उन्होंने इसके लिए ही include किया है कि यहाँ पे 100% नहीं, 99% you can rely. Now तकलीफ आएगा जब वो 5 सम है, 2 एडमिशन, रिटायरमेंट और 2 शेयर कैपिटल. तो आई वुड लाइक यू के रिटायरमेंट को बिल्कुल इग्नोर मत करना कि रिटायरमेंट जोज न थी. रिटायरमेंट के भी इंपॉर्टेंट सम 2-3 सॉल्व करके जाना, और इश्यू ऑफ शेयर्स में भी तुम्हारे पास 2 सम है, तो मुझे नहीं लगता अगर थोड़ा भी इधर का उधर हो गया तो तुम्हें दिक्कत आएगी. तो इश्यू ऑफ शेयर और एडमिशन एकदम पक्का कर लो, रिटायरमेंट थोड़ा देख लो, या रिटायरमेंट और इश्यू ऑफ शेयर ये करना थोड़ा रिस्की कॉम्बिनेशन रहेगा. आई वुड से दैट. कुछ लोग इसके लिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने मार्केट से जो बुक खरीदी है उसमें 2 रिटायरमेंट और 1 एडमिशन है, बट वो पुराने सिलेबस में था, पुराने ब्लूप्रिंट में था.
तो शायद पब्लिशर ने वो चेंज नहीं किया है। हमने जो बनाया वो एज पर लेटेस्ट बोर्ड सर्क्यूलर है, बट स्टिल मैं कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं हूं कि मैं आपको बोल सकूं कि 100% आ जाओ से, એટલે रिस्क थोड़ा तो है ही। तो तुम प्रॉपरली प्रिपेयर होके जाना, बी कंजर्वेटिव अकाउंट्स का जो कंसेप्ट है, ओके, एक्सपेक्ट द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वो पता है ना वो कौन सा कंसेप्ट है, उसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। तो ये अकाउंट्स है, ओके। या अभिषेक, सो सॉरी, आई many had this question, so okay, no issues, no next issues. questions I can take later on. Okay. Yes, good evening everyone once again. Good evening, sir. Good evening, sir. Please switch on your videos everyone. यहाँ पर दूसरी सारी स्क्रीन से तो मेरे को कोई चेहरे दिख ही नहीं रहे हैं। Yes, good. Okay. Now आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको बोर्ड में अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। 4वीं का सबसे पहले हाथ ऊपर, क्वेश्चन सुने बगैर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, प्लीज लोअर योर हैंड्स नाउ। अभिषेक, ऐसे होती है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको 5,000 रुपए, 3,000 रुपए, 2,000 रुपए कमाने हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा, आई थिंक एवरीवन। और मैं देख रहा हूं कि सम ऑफ यू आर विद पेरेंट्स, सम ऑफ यू आर अटेंडिंग दिस सेशन अलोन। सो आप सब लोग घर पे ही हैं, घर पे होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो घर पे पेरेंट्स भी होंगे अभी इस टाइम पे, तो वीडियो ऑन करेंगे और सबसे पहले अपने पेरेंट्स तक पहुंचेंगे। अगर आप उनके साथ नहीं है तो मैं यहाँ लाइव आपको देख रहा हूं। सर ये क्यों करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो? अरे पहले पहुंचो तो सही। पेरेंट्स घर में है तो उनके बाजू में जाओ, उनको स्क्रीन पे लाओ। एवरीवन, बेटा रोहन शाह मम्मी पापा दोनों के साथ बैठा हुआ है। तो आपने वो डायलॉग सुना होगा, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? सामने क्या जवाब आया था? मेरे पास माँ है, और आपके पास तो माँ बाप दोनों हैं। तो जेब में कितना भी अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम का नॉलेज लेके जाओगे, जब तक माँ बाप का आशीर्वाद साथ में नहीं होगा तब तक आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अभी के अभी ऑन स्क्रीन आप सब लोग अपने पेरेंट्स के पैर छुए मेरे सामने, और पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, और आशीर्वाद के साथ एक छोटा सा हग भी दें। यस, वेरी गुड, व्हाट अ वंडरफुल साइट। यस, नाइस। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरा दूसरा सवाल है इस सेशन का, कितने स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स और ओसीएम में 100 में से 100 मार्क का लिखा है प्रीलिम्स में, यहाँ की टेस्ट में? बहुत बढ़िया। लेकिन ये हाथ इतने कम क्यों हो रहे हैं? ओके, 35 पार्टिसिपेंट्स 100 में से 100 मार्क का लिखा है। बहुत बढ़िया। 45 पे ये पार्टिसिपेंट्स खत्म हो रहे हैं। ओके, लोअर योर हैंड्स। अब सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमिक्स और ओसीएम में ये है कि कई लोग अपना पेपर ही पूरा नहीं कर पाते। उसके पीछे 2 वजह है। एक, उनके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है टू कंप्लीट द पेपर, या फिर प्रॉपर नॉलेज नहीं है टू राइट द पेपर कंटिन्यूअसली। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट 100 मार्क्स का पेपर लिख नहीं पाए, 95 का लिखा। तो कैसे हम ये चैलेंज को ओवरकम करेंगे, एंड हाउ वी आर सपोज टू राइट इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम पेपर इन द गिवन टाइम फ्रेम, ये हमारा आज का डिस्कशन होगा। So I am sharing one screen. All of you please confirm by giving me a thumbs up whether you are able to see the screen or not. Screen देख पा रहे हैं तो give me a thumbs up. Okay. चलिए, तो सबसे पहले जो हथियार की मैंने बात करी थी, you have only one tool, that is your pen.
कई लोगों की ये पेन सिलेक्शन में ही गड़बड़ हो जाती है। पेन का पता है ना, अलग अलग mm का डायमेंशन आता है, 0.5, 0.6, 0.7 एंड सो ऑन। तो आपको कौन सा बॉल पेन लेना है हैविंग 0.5 mm साइज, उसके पॉइंट का साइज 0.5 mm होना चाहिए। और आप मेहरबानी करके जेल पेन यूज नहीं करेंगे, पायलट पेन यूज नहीं करेंगे, इंक पेन तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि पेपर हमको एक बाजू से लिखना है, दूसरी बाजू उसको छापना नहीं है रिवर्स इमेज में, ठीक है, एज इट विल लोअर योर राइटिंग स्पीड दीस पेन्स। तो 0.5 पॉइंटर अगर यूज करेंगे तो आपकी राइटिंग स्पीड भी एकदम बढ़ जाएगी, और आप ये महसूस करेंगे कि जो टेस्ट अभी तक आपने दिए थे उससे फास्ट पेपर खत्म होंगे इन आने वाले एग्जाम्स में। Those people who are already using 0.5 mm पेन और फिर भी पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया है, मतलब बेटा लोचा यहाँ पे है, आपके नॉलेज में है, आपकी मेमोराइजेशन में है, क्योंकि थियरी के आंसर्स लिखने से पहले वो हमारे दिमाग में पूरे छपे हुए होने चाहिए। एक सेकंड भी हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए इन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। जैसा सागर सर ने अपने प्रेजेंटेशन में बोला कि पेपर लिखते लिखते कहीं ऊपर भी नहीं देखना है, उतना वक्त भी हमारे पास होना नहीं चाहिए। और ये अगर आपको करना पड़ा मींस यू आर गेटिंग स्टक समवेयर बिकॉज यू डोंट नो द आंसर, तो फिर आपको अपनी मेमोरी पे, मेमोराइजेशन पे, इन सब जगह पे काम करना पड़ेगा, कंटेंट को प्रॉपरली तैयार करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। दूसरी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आपको इनिशियल 15 मिनट्स मिलेंगे, पता है ना पेपर को रीड करने का आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। एवरीवन आर यू विथ मी? पेपर को पढ़ने का कितना मिनट मिलता है? 15 मिनट। और ये 15 मिनट में 20 एमसीक्यूज के आंसर आप क्वेश्चन पेपर में ही मार्क कर सकते हो, इतना तो आराम से हो पाएगा। इट विल नॉट टेक मोर देन 7 to 7.5 मिनट्स, और बाकी 7.5 मिनट आप पेपर के क्वेश्चंस को पढ़ के अपना अप्रोच बनाइए कि हमें कौन सा आंसर किस हिसाब से लिखना है, ठीक है। सो सबसे पहले पेपर आते ही पढ़ के एमसीक्यूज के आंसर उसमें मार्क कर देने, सो दैट व्हेन यू आर गोइंग टू राइट यू कैन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, ठीक है। राइट दोज आंसर्स फर्स्ट which you know and leave space for those which you don't know। जैसा सागर सर ने अभी बोला कि कोई भी सेक्शन का ऑर्डर चेंज नहीं करना है, सेक्शन ए उसमें अंदर भी 1 to 10 ही आना चाहिए। सो जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि हमें नहीं आता या थोड़ा कम आता है, इसमें हमें थोड़ा अपना क्रिएटिविटी यूज करना पड़ेगा, अपनी हिसाब से लिखना पड़ेगा, फेकम फेक करनी पड़ेगी जो आपकी भाषा में है, तो उस आंसर को फिलहाल छोड़ दें, उसके लिए जगह छोड़ दें, सफिशिएंट जगह छोड़ें, ताकि आप उसी आंसर को वापस बाद में रिविजिट कर सको और क्वेश्चन का ऑर्डर भी चेंज ना हो, ठीक है। फिर आता है ट्राई नॉट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द आंसर्स इवन विद इन अ गिवन सेक्शन। जो मैंने अभी कहा कि सेक्शन बी 11 to 20, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए 11 के बाद 17 के बाद 12, 11, 12, 13, 14, 15 से ही पूरा ऑर्डर फॉलो करना है। टारगेट राइटिंग 100% ऑफ द पेपर वेदर यू नो और यू डोंट नो द आंसर्स, क्योंकि ये मैं अक्सर अपने बच्चों से शेयर करता हूं क्लास में। अगर उन्होंने हमसे ऐसे सवाल पूछे हैं जिनके जवाब हम नहीं जानते, तो हम ऐसे जवाब लिख के आए जो वो लोग नहीं जानते। समझ में आ रहा है? एंड दे शुड बी कंफ्यूज्ड कि इसको मैं मार्क्स काटूं किधर। आंसर में फेकम फेक भी आपको ऐसी करनी है जो एकदम रेलेवेंट हो। जैसे 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स हैं, तो उसमें मैंने अपने लेक्चर्स में कई बार आपको कहा है कि जब भी आपको ये आइडिया नहीं आता कि इस आंसर की शुरुआत कैसे करनी है, तो एक रामबाण है, एक राम स्टेटमेंट है, जो आप उसको यूज करोगे तो कंटिन्यूटी इन राइटिंग मेंटेन रहेगी। एज फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग बर्थ रेट, ठीक है, हाई बर्थ रेट, तो उसमें आप जो एक पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है, कि डिजायर फॉर अ मेल चाइल्ड, तो उसमें अगर आपको नहीं आइडिया आ रहा है कि क्या लिखना, तो शुरुआत कैसे करनी है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आ रहा है? ये जितना लिखोगे ना आप,
उतने में आपको आइडिया आ जाएगा, दिमाग अपने आप बोलेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है, लेकिन क्यों है उसके पीछे के रीजंस अपने आप आपका दिमाग जवाब देना शुरू करेगा, और आपकी राइटिंग भी इंटरप्ट नहीं होगी, 3-4 वर्ड्स भी आप लिख लोगे, आंसर भी अपने आप लेंदी हो जाएगा। और ये भी एक क्राइटेरिया होता है एग्जामिनर्स का कि थियरी पेपर्स में आपने लिखा कितना है, क्या लिखा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कितना लिखा है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कई एग्जामिनर्स के लिए होता है। ठीक है, अंडरस्टूड? चलो आगे देखते हैं। राइट ओनली 4 to 5 words in one line so that your paper looks neat, tidy and lengthy. ये किसके लिए लागू पड़ता है बेटा? सेक्शन बी टू ई। एमसीक्यूज वाले में 4-5 वर्ड नहीं लिखने के, बोले ए बी सी डी सिलेक्ट कर लो अपने आप से, ऐसा नहीं होता है। उसका तो एक ही वर्ड है या एक ही ईयर है या एक ही डेटा लिखना है। ओके, सो सेक्शन बी टू सेक्शन ई में खास ये ध्यान रखना है, एक लाइन में कई लोग 7 से 8 शब्द लिख देते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं, चीटियों वाले हैंडराइटिंग होते हैं उनके, ऐसा नहीं निकालना है, हाथी वाला भी नहीं निकालना है, आप खाली लाइन वाला निकालो। अंडरस्टूड? 4 to 5 वर्ड्स इन वन लाइन। क्लियर? इससे आपका आंसर नीट एंड टाइडी भी होगा और पेज भी फटाफट भरने शुरू हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। साथ ही साथ एग्जामिनेशन हॉल में आप पहले व्यक्ति होंगे जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मांगेंगे, इससे दूसरों पे प्रेशर आएगा वो अलग। समझ में आ रहा है? और यही तो गेम है पूरा। यस और नो? यू हैव टू आउट परफॉर्म योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, अभी आप एग्जाम देते समय ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जो मेरे साथ एग्जाम दे रहा है वो भी यूविलियन है, यूविलियन भाई भाई। अभी तो आप बेटा कंपटीशन में उतरे हो और ये कंपटीशन में हर एक को जीतना है, उसी की ट्रेनिंग हमने आपको दी है इतने 2 सालों में। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, कोई डिफिकल्टी है? आर यू ऑल विथ मी? नो सर। कई सारे वीडियो अभी वापस बंद हो गए, बेटा जागो, मैं हूं अभी यहाँ पे। यस यश अग्रवाल। सर आपने बोला कि कंटेंट और क्वांटिटी नेसेसरी है, यस, लेकिन सर कंटेंट लिखा होगा और क्वांटिटी नहीं होगी तो मार्क्स कटेंगे? कट सकते हैं, मैंने बोला कुछ एग्जामिनर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। एवरी एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू रीड एवरीथिंग इन डिटेल एंड देन ओनली गिव यू मार्क्स। कंटेंट तो अपना सॉलिड है ही, पर उसको क्वांटिफाई कैसे करना है? बाय प्रेजेंटिंग दैट कंटेंट प्रॉपरली। कई बार ये होता है कि कंटेंट आपने लिखा लेकिन प्रेजेंटेशन उसको पता नहीं चला, समझ नहीं आया, आपने क्या लिखा है मालूम नहीं पड़ा, बिकॉज हैंड राइटिंग पे अपन ने इतने सालों काम ही नहीं किया। सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ओके, सो वो हैंड राइटिंग का भी वो लोग अनटाइडी लगा ना प्रेजेंटेशन, तो उसको लगेगा इसको तो कुछ आता ही नहीं है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि कंटेंट वंस नोन, प्रेजेंट दैट कंटेंट प्रॉपरली so that the other party is convinced, because your paper is your personality in front of the examiner, और वो अच्छी ही होनी चाहिए। तो उसको अच्छा कैसे बनाना है? by presenting it properly, not writing more than 4 to 5 words in one line. ठीक है यश? ठीक है यश? यस सर। ओके, बाकी क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल एड्रेस, एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिकल के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो सागर सर एड्रेस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन वाइज आई विल गाइड यू हाउ टू राइट द पेपर। तो सबसे पहले आपको विजुलाइज करना है कि आपके सामने 20 एमसीक्यूज हैं, हर एक एमसीक्यू का 1 मार्क है। यस और नो? सबसे पहले एमसीक्यूज तो बेटा आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, आए नहीं आए वो दूसरा मैटर है, अटेम्प्ट 100% करना है, ये पहला मैटर है। तो सर अटेम्प्ट 100% कैसे करने का? 20 में से लगभग 15 से 18 एमसीक्यूज तो आपको आते होंगे, ये मैं मान लेता हूं, ठीक है, और इतनी आपकी पोजीशन अब तक होनी चाहिए। रहे 2 से 5 एमसीक्यूज जिसमें हमें कोई डाउट डिफिकल्टी है, तो उसमें सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन मेथड? जब आपको ये पता नहीं चलता ना कि सही आंसर कौन सा है, तो ये ढूंढो कि गलत कौन सा है, ये तो पता चल ही जाएगा। ये डी गलत लग रहा है तो हटाओ उसको, सी गलत लग रहा है उसको हटाओ। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना 50-50,
सो 4 में से 2 आंसर तो हट गए, अभी सिलेक्शन क्या करना है, 2 आंसर में से किसी एक को चुनना है। इसमें आपका पहला थॉट जो आएगा कि ये मेरे को सही लग रहा है ऑप्शन ए लेटर से, तो आप उसको टिक कर लो और उसको लिख दो। मान लो कि लास्ट 2 में कंफ्यूजन है, तो अपने पास एक और मेथड है, ठीक है, लक बाय चांस मेथड में उसको बोलता हूं। आपने ये मूवी में देखा होगा, कौन सा मूवी था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, है ना, उसमें एक बंदा आता है, जय माता जी रॉक्स, जय माता जी रॉक्स, और फुल मार्क्स लेके आता है। देखो बेटा, ऐसा खाली पिक्चरों में होता है, अपना सब जय माता जी रॉक्स नहीं होता है। सो यहाँ पर जो भी 2-3 एमसीक्यूज आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, तो इनकी पिंकी पोंकी करके कोई एक सिलेक्ट कर लेने का, लेकिन आंसर लिखने का जरूर। ऐसे स्टूडेंट से मुझे सख्त नफरत है जो एमसीक्यूज का ऑप्शन छोड़ देते हैं, बोले ये नहीं लिखना क्योंकि मुझे नहीं आता। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे बाकी सारे एमसीक्यूज तुमको आते हो, बाकी में से भी गलत हो सकते हैं ना, तो ये वाला भी गलत होने दो, सही हो गया तो क्या, क्योंकि आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, गलत आंसर देने का कोई पनिशमेंट नहीं है। सो आप एमसीक्यूज 100% अटेम्प्ट करें। आंसर ऑफ एमसीक्यू शुड बी रिटन एज नंबर, ऑप्शन एंड देन द आंसर। तो बात को समझो, 5th एमसीक्यू है तो पहले लिखो 5, फिर उसमें से ऑप्शन डी है तो लिखो ब्रैकेट में डी, और फिर आंसर है कि भाई प्लानिंग कमीशन कब शुरू हुआ, तो 1951, तो वो भी पूरा आंसर लिखना है। खाली डी लिख के मत आना, खाली 1951 लिख के मत आना, एमसीक्यू का नंबर, सही ऑप्शन और उसका आंसर, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू सेक्शन बी। राइट द होल आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस होते हैं, ये भी 1 मार्क के होते हैं। अब 1 और 2 सेंटेंसेस हैं, 1 लाइन नहीं है कि 1 लाइन में ही समाप्त करना है, ऐसा कोई प्रेशर मत रखना। It should be 1 sentence or 2 statements also will do. You can increase that to 2 to 3 lines in your supplementary book, ठीक है। क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर लिखने का कितना, तो जितना कंटेंट है वो, बट कंटेंट को बड़ा प्रेजेंट करने का, क्लियर, ताकि लगे तुमने कुछ लिखा है। 1 मार्क के लिए भी ओहो 3-4 लाइन लिखी है इसने, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और आपको शायद पढ़े बगैर ही मार्क्स दे दे। Be precise and answer exactly what is asked in the question. यहां पर स्टोरी बाजी करने की नहीं, डोंट बीट अराउंड द बुशेस, है ना, कि आपको पॉइंट का बात बोला है तो ऐसा नहीं बोलने का ये नहीं वो नहीं, इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं, लेकिन जाना तो इधर था, तो सीधा पॉइंट पे आके उसका बात करने का, एंड डायरेक्टली आंसर द प्रिसाइज क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, ठीक है। 1 मार्कर है, मत भूलना, इसमें कोई स्टोरी लिखनी नहीं अपने को। अंडरलाइन सम डेटा और ईयर इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द आंसर। कीवर्ड्स हमने आपको मार्क कराए हैं। कौन है ये, हेलो, Abhishek, unmute yourself now. Yes. चल ओके, तो किधर थे हम, अंडरलाइन सम डेटा और ईयर इफ इट्स अ पार्ट ऑफ द आंसर। जैसे आपने देखा है कि इकोनॉमिक्स में काफी सारे डेटा होते हैं, ओसीएम में कीवर्ड्स होते हैं, तो वो आपको अंडरलाइन करने हैं इन दिस 1 मार्कर ऑल्सो, ताकि एग्जामिनर सीधा उस वर्ड को देखकर ही आपको मार्क्स दे दे। बट मेक श्योर ये वर्ड सही होना चाहिए, समझे। इसमें अगर फेकम फेक किया और गलत वर्ड अंडरलाइन किया ना, तो वो गलत वर्ड देख के मार्क्स काट भी सकता है। ओके, सो अंडरलाइन ओनली व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट। उसके बाद रिटर्न बैक टू दिस सेक्शन, क्योंकि मैंने क्या बोला, पहले जो आता है वो लिखो, नहीं आता है उसकी जगह छोड़ दो। सो आखिर में इस सेक्शन पे वापस आके हमें थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ेगी, थोड़ा इसमें फेकम फेक करना पड़ेगा, बट आंसर अनअटेंडेड तो कोई भी रखना नहीं है, ठीक है। नाउ वी गो टू सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। इसकी स्ट्रेटेजी कॉमन रहेगी, 2 मार्कर्स एंड 3 मार्कर्स। इसमें थोड़ा आपको फ्रीडम मिलेगा अपनी क्रिएटिविटी बताने का, थोड़ा बीटिंग अराउंड द बुश करने का,
क्योंकि these are a bit more lengthy answers than the previous one, so you have more scope of writing in. सेक्शन सी कितनी लाइंस लिखनी है? 8 से 10 लाइन का एक आंसर होना चाहिए, 2 मार्क का है, 8 से 12 लाइन, ओके। सेक्शन डी 15 से 20 लाइन आपकी सप्लीमेंट्री की हो सकती है, उतना लिखना है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन वाइज डिसेंट लगेगा। इसको आप टारगेट बना के मत चलना, यह नहीं होता है और कंटेंट उतना ही है तो उतना लिख के हम छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट दिस इज द मोस्ट आइडियलिस्टिक पिक्चर विच एनी एग्जामिनर वुड लाइक टू सी, कि 3 मार्क में आधा पेज लिखा है। यूज स्केल एंड पेंसिल टू डबल अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, सिंगल अंडरलाइन द कीवर्ड्स इन द पैराग्राफ। कई बच्चे पेंसिल तो यूज करते हैं लेकिन स्केल यूज नहीं करते, है ना। फिर सिग्नेचर के नीचे कैसा ऐसा 2 बार अंडरलाइन किया होता है, एकदम अवर चंडा, ठीक है। वैसा नहीं करने का, यू नीड टू ड्रॉ दिस लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, और डबल अंडरलाइन करो मेन पॉइंट को। अच्छा, मेन पॉइंट लिखा, उसके बाद एक लाइन तो ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि डबल अंडरलाइन में वो यूज होगा ना। फिर 2 सब पॉइंट्स हैं, उसके बीच में एक एक लाइन छोड़ो। ये टेक्निक्स है सारी, अपना आंसर बड़ा है, हमें ज्यादा आता है ऐसा दिखाने की, क्योंकि ऑल इज अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन एंड शो, वेदर इट्स एन एग्जामिनेशन और इट्स योर बिजनेस और इट्स योर पर्सनल लाइफ। शोबाजी करनी पड़ेगी तो ही आपका सामने से अप्रिसिएशन होगा। रिटर्न बैक टू दिस सेक्शन, जैसा ई सेक्शन कंप्लीट हुआ और पता था कि 5 क्वेश्चन ऐसे हैं अनअटेंडेड, तो इस पे वापस आके उसको कंप्लीट करने का, डफ मारने का, ठीक है। एंड सेक्शन ई 5 मार्कर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इसमें फुल क्रिएटिविटी यूज करने का, ठीक है। द लेंथ ऑफ द आंसर्स कैन बी 2 to 4 पेजेस। अब कई लोग बौखला जाएंगे ये सुन के, 3 पेज 4 पेज, लेकिन बेटा वर्ड्स कितने हैं वो तो देखो, एक लाइन में 4 से 5 वर्ड से ज्यादा नहीं आने वाला, और आपके मान लो 7-8 पॉइंट है तो उसको आपने लिखा, ये 3 पेज अपने आप भरेंगे, क्योंकि बेटा सब पॉइंट्स में भी मैंने बोला है ना बीच में स्पेसिंग रखने का, सो इट विल, दिस टारगेट विल बी इजीली अचीव्ड। उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इन इकोनॉमिक्स आपको ग्राफ आता है ना, सो वो ग्राफ आपको एंड में ही अटेम्प्ट करना है, बिकॉज सी ग्राफ जहां पर जिस सप्लीमेंट्री को आप अटैच करेंगे ना, उसके पहले ही उसका एनालिसिस होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर के सामने क्या हो, ये तरफ ग्राफ और ये तरफ उसका एनालिसिस, तो वो दोनों को अच्छे से कंपेयर करेगा और आपको मार्क्स देगा। उसके लिए इजी है क्योंकि दोनों एक साथ उसको दिख रहे हैं, तो ये लास्ट में ही अटेम्प्ट करना। कई लोग बहुत ज्यादा उतावले होते हैं, वो बोले ग्राफ आवड़े છે, ફૂલ માર્ક્સ એમાં આવશે, કોન્ફિડન્સ લેવા માટે આપણે પહેલા ગ્રાફ કરીએ, बट उसमें टाइम भी जाता है, और दूसरा एग्जामिनर को एनालिसिस पीछे पेज पलटा के देखना पड़ेगा और उसको ग्राफ जो लास्ट में अटैच हुआ है उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तो उसकी दिक्कत भी आप समझो, ठीक है। बी वेरी एग्जामिनर फ्रेंडली, then he will give you friends marks only, he'll give you marks as if you are his friend. Do not number your main points, कभी भी मेन पॉइंट को नंबर करने का नहीं। क्यों ऐसा, बात को समझो। मान लो 10 पॉइंट का आंसर है, कितने पॉइंट का आंसर है 10, और आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां पॉइंट भूल गए तो नंबर लिखा होगा ना, तो एग्जामिनर तुरंत जान लेगा, ए 9 ही लिखा इसने, तो 1 नहीं लिखा, मार्क काटो। लेकिन अगर आप नंबर देंगे ABCDEFGHI J, अभी उसको नहीं मालूम कि J 10 पे आता है, आपको भी नहीं मालूम, यस और नो, I 9 पे आता है, J 10 पे आता है, ये किसको मालूम रहता है, तो उसमें आप खेल जाओगे उसके साथ। बेटा ये सारी टेक्निक्स मैं आपको अभी इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हथकंडे आपको बोर्ड पे लागू करने हैं, हम पे लागू नहीं करने थे। ये पहले बता देता तो यहाँ की क्लास टेस्ट में भी आप ऐसी हरकतें करते हैं, और कुछ लोग तो पहले से करते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर दैट वी नीड टू विन द हार्ट ऑफ द एग्जामिनर इन द बोर्ड, और उसके लिए जो जो टूल्स मैं आपको दे रहा हूं वो ध्यान से याद रखना। प्रेजेंटेशन की कॉपी तो आपको मिल ही जाएगी, तो सब लिखा हुआ रहेगा, तो अभी नोट करने मत बैठना, खाली सुन लो समझ लो। उसके बाद राइट ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ बिग आंसर बिलो द इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके नीचे 10 पॉइंट का आंसर है, तो पहले वो 10 पॉइंट स्टेट कर दो। वो कब स्टेट कर पाओगे आप,
जब आपको ये 10 के 10 पॉइंट आते हो और ये अगर आते हैं स्टार्टिंग में लिख दिया तो दो फायदे हैं इसके। एक, एग्जामिनर ये 10 पॉइंट देख के ये जान लेगा कि तुम्हें सब कुछ आता है, और दूसरा, आपको भी याद नहीं रखना पड़ेगा। फिर पेज पलटा के जैसा करते थे ना पहले क्लास में, वैसा पेज पलटा के सीधा वो पॉइंट को कॉपी करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और याद रहता है तो बेस्ट। अंडरस्टूड? एंड नाउ वी गो ऑन टू द टाइम एलोकेशन टेबल फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो उसमें आप ध्यान दो, सेक्शन 5 है। पहला सेक्शन एमसीक्यूज, 20 क्वेश्चन में से 20 आंसर आपको देने हैं, कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि 15 मिनट में मार्क तो कर लिया, अब 20 शब्द लिखने में कितना टाइम? एक्चुअली 10 मिनट भी बहुत ज्यादा है, ये तो 5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। बट अगेन यू हैव टू राइट द नंबर, द ऑप्शन एंड देन द फाइनल आंसर। सो राइट इट अकॉर्डिंगली। आई हैव गिवन 10 मिनट्स फॉर द सेम। वन लाइनर्स 10 में से 10 फुल कंपलसरी, कोई ऑप्शन नहीं। ये 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जितना आप सेक्शन ए में टाइम बचा लोगे उतना सेक्शन बी में आप ज्यादा दे पाओगे। सोच समझ के करना। 2 और 3 लाइन सेक्शन सी, 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको आंसर खाली 12 का ही देना है। 4 ऑप्शन में निकलेंगे, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। सो 12 2 24 आउट ऑफ व्हाट 32 के ऑप्शंस होंगे, पर अटेम्प्ट कितना करना है? 24 मार्क्स का ही। सो एट योर चॉइस। प्लीज डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्वामी विवेकानंद एंड स्टार्ट राइटिंग सेक्शन सी ऑल 16 आंसर्स, और फिर नीचे नोट लिखोगे। उन्होंने आपको क्या बोला था? राइट एनी 12। तुम 16 के 16 लिख के बोलोगे चेक एनी 12। ऐसी होशियारी मारने की नहीं, अपने पास है ना टाइम कम है, समझे? वो कर सकते थे, वो स्वामी विवेकानंद थे, और पता नहीं तब पेपर स्टाइल कैसा हुआ करता था। चलो फिर सेक्शन डी, ब्रीफ आंसर्स, 10 में से 7, 10 क्वेश्चंस पूछे, आपको आंसर खाली 7 के ही देने हैं। तो उसके लिए 40 मिनट, सेक्शन सी के लिए 30 मिनट्स। एंड सेक्शन ई मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 मार्क का एक आंसर है, 7 क्वेश्चंस में से 5 के आंसर देने हैं। तो इकोनॉमिक्स में एक ग्राफ तो पक्का, तो बाकी बचे 4। ठीक है, सो वो 25 मार्क्स का होगा, और एक आंसर के लिए 15 मिनट दिए, तो 75 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बावजूद आपके पास 10 मिनट बचेगी, तो 10 मिनट में मत भूलना हमें वापस जाके प्रेजेंटेशन भी करना है। साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि सारे आंसर्स हमने लिखे कि नहीं लिखे। अच्छा, बीच में आंसर छोड़े हैं सपोज, तो 10 मिनट नहीं बचने चाहिए, लास्ट में 20-25 मिनट बचने चाहिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन तुमने पहले के छोड़ दिए हैं, तो वो तो अलॉटेड टाइम में कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जो सेक्शन मैंने बता के रखे हैं वो सब आंसर दे दो, उसका टाइम है। सो एट द एंड यू विल बी लेफ्ट विद 10 मिनट्स ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। और ये घड़ी साथ में होगी, तो आप बार बार हर एक सेक्शन के बाद चेक कर पाएंगे कि कितना टाइम हुआ है। कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द वॉच। क्लियर? एंड नाउ वी गो फॉर द OCM टाइम एलोकेशन टेबल। उसमें भी सब कुछ सेम है, खाली नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ी ऊंच नीच है। सेक्शन ए सेक्शन बी डिट्टो सेम, 10 मिनट 15 मिनट। सेक्शन सी 17 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें से 13 के आंसर देने हैं, तो 26 मार्क्स का वो होगा। 13 क्वेश्चंस के लिए दिए हैं आपको 30 मिनट्स। ब्रीफ आंसर सेक्शन डी 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12, 4 ऑप्शन में निकलेंगे, और उसके लिए आपको मिलेंगे 55 मिनट्स। और डिटेल्ड आंसर आपको 4 ही देने हैं, सो 4 into 15 मिनट्स पर आंसर, दैट इज 60 मिनट्स। इसमें भी आपके पास लास्ट में कितने बचेंगे? 10 मिनट्स बचेंगे, विच यू कैन यूज टू चेक और यू कैन यूज फॉर प्रेजेंटेशन। एडवाइस तो मेरी यही है कि आंसर जैसे ही कंप्लीट होता है उसका प्रेजेंटेशन वहीं पर ऑन द स्पॉट कर लो, क्योंकि जब आपने आंसर लिखा ना, आपके दिमाग में आंसर फ्रेश है, तो उसके अंदर जो कौन से कीवर्ड्स हमें अंडरलाइन करने हैं ये हमें उस मोमेंट पे याद है। शायद 1 घंटे बाद आपको आंसर पूरा पढ़ना पड़े और अंडरलाइन करना पड़े कीवर्ड्स को। ठीक है, तो साथ साथ ये सब भी करते रहना, सेक्शन वाइज ही करते रहना, पेंडिंग मत रखना उसको फॉर द लास्ट। सो लास्ट 10 मिनट्स यू कैन यूज फॉर चेकिंग एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, और ये आखिरी सेइंग से मैं अपना सेशन एंड करना चाहूंगा। जब बाकी लोग सो रहे हैं तब हम पढ़ेंगे, जब बाकी लोग सुस्ता रहे हैं तब हम काम करेंगे, जब बाकी लोग खेल रहे हैं हम अपनी तैयारी कर रहे होंगे,
और बाकी लोग खाली इच्छा रख रहे होंगे, तब हम अपना एक ड्रीम देख रहे होंगे। ये सब कब पॉसिबल है? व्हेन यू हैव अ प्रोएक्टिव अप्रोच इन लाइफ। और ये अच्छी स्कूल में पढ़ना, अच्छे परसेंटेज लाना, ये परसेंटेज के बेसिस पे आगे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, ये सब हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये अधिकार आपको मिलता नहीं है मांगने से, इसको छीनना पड़ता है करने से। वो काम हमने 2 साल किए हैं। So now don't let the horses reduce their speed. You keep on going, moving, and now the time has come कि अपने गियर्स चेंज हो और एक अलग स्पीड पे हम जाएं, ताकि लास्ट 10-15 दिन में हम वो सब कर जाएं जो अभी तक हम नहीं कर पाए थे। So with this I would like to end my presentation, my session.